theta sin theta, cos theta sin theta, minus sin theta cos theta, minus sin theta cos theta, plus sin theta into then here sin theta minus cos theta, sin theta minus cos theta, and then cos theta sin theta is there, cos theta sin theta. You have to simplify the given matrix. Is very simple matrix given to us, and we want to simplify it. So we write first the given matrix and then we simplify here. Very simple one. So what we have here, the matrix of this like cos theta sin theta minus sin theta cos theta plus sin theta into okay, see here now sin theta into this is the sin theta minus cos theta and then cos theta and then sin theta is there. This is the matrix given to us and we have to simplify the given matrix. Okay, so very simple one. See here now what we done here in that case. So it's a question given to us. Simplify this matrix, cos theta out of the matrix plus sin theta is one. इसको simplify करेंगे अपन, it is equal to. तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टी मालूम है कि कोई भी एलिमेंट अगर से मैट्रिक्स के बाहर है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई द एलिमेंट each and every element of that quantity. This is but cos theta is there. So cos theta it is nothing but cos square theta is there. ये हो गया cos square theta. Cos theta into sin theta is nothing but sin theta cos theta या फिर cos theta sin theta दोनों में से एक. और ये कितना मिला आपने को minus sin theta cos theta is there. Cos theta into cos theta again we got here cos square theta is there. Okay. Now we proceed to the next one. Plus multiply that element by sin theta sin square theta minus then here sin theta cos theta is there. Then it is nothing but sin theta cos theta is there, sin theta sin square theta is there. So these are the two matrices and we have to add the given matrix. Okay, first we multiply this matrix by cos theta, then second we multiply this matrix by sin theta. We got the matrix something like to here. Now we have to add this matrix. After adding we got here there is no space in there. यहाँ पे एडिशन नहीं होगा, हम इसको एडजस्ट करेंगे. So what happens now? Here now, इसके एडिशन करने के बाद हमें ऐसा मिलेगा कुछ. What we got here is equal to addition is nothing but cos square theta plus sin square theta first term, cos square theta plus sin square theta. Then afterward ये दोनों के एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा? sin theta cos theta plus minus again sin theta cos theta is there. आगे टर्म में माइनस साइन थीटा कॉस थीटा में प्लस करेंगे अपन साइन थीटा कॉस थीटा इज देयर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इज देयर. फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज देयर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज देयर. तो ये सबको मालूम है. द रिजल्ट ऑफ दैट वन cos square theta plus sin square theta is equal to 1. Now here sin theta cos theta plus का और minus sin theta cos theta gets cancel. You got the answer 0. Again minus sin theta cos theta and then plus sin theta cos theta gets cancel. Answer will be the 0. And now cos square theta plus sin square theta value is equal to 1 is there. So simply we got here as we know that ये जो matrix है 1 0 0 1 it is called as an identity matrix of order 2. It is nothing but I2 is there. Okay. After simplification we got the matrix which is nothing but identity matrix of which order? It is of order 3. So very simple one. After simplification it is your question number 7 is there. Now we proceed to the question number 8. Okay, this is a 7th question. I think I hope you understand this one. Now we proceed to the next question. That is question number 8 is there. So what is question number 8 tells us now? See here now. क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाएंगे हम. तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखो यहाँ पर. इफ a is equal to, क्वेश्चन नंबर 8 is there. If capital A is equal to matrix of this type I to I minus 3 to
and capital B is equal to matrix of this type 2i I or 2 minus 3, where I is equal to under root of minus 1, where I is equal to root minus 1. पहला क्वेश्चन है find a plus b and a minus b is there. Here now. First we have to find out here. First we have to find here. So here we have to find, पहले निकालना पड़ेगा a plus b और a minus b दोनों चीजें, a plus b and a minus b दोनों निकालना पड़ेगा. और अगला है show that a plus b is singular. Show that a plus b is a singular. एक ऐसा a plus b singular पूछा, और whether a minus b is singular matrix justify your answer. इसके आगे whether a minus b is है ना, yes, whether a minus b is a singular matrix justify your answer. Singular matrix justify your answer. Question mark justify your answer. तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ के लेने के बाद में इसको सॉल्व करेंगे. ऐसे दो मैट्रिक्स है, if capital A is equal to one matrix and capital B is equal to second matrix, is that one where I is equal to root minus 1, I nothing but imaginary number. देखो जब भी I देगा तो ये I का बाजू में मेंशन करेगा कि ये I क्या है. तो I जो है तो ABCD में से भी रह सकता है ना, अल्फाबेट. इसलिए यहाँ पे जब आएगा तो I क्या है, I की वैल्यू कितनी, रूट माइनस 1, मतलब यहाँ पे जो I है वो कैसा है, इमेजिनरी नंबर है. ठीक है, आगे ऐसा अगर से तो इमेजिनरी नंबर है तो उसके I की वैल्यू कितनी रहती है, रूट माइनस 1. तो आगे से पूछा फाइंड a प्लस b, पहले a प्लस b निकालो और a माइनस b दोनों निकालो, a प्लस b एंड a माइनस b. निकालने के बाद शो दैट a प्लस b इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स. सबको मालूम है कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर कब रहेंगी, जैसे कि एक मैट्रिक्स A है तो ये सिंगुलर कब आएंगी, जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है. और डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो वो क्या है, इट इज अ नॉन सिंगुलर वन. तो शो दैट है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस b. ये निकालने के बाद इसकी वैल्यू अगर से 0 है तो ये मैट्रिक्स कौन सी है, सिंगुलर है. और उसके बाद उसने पूछा whether a minus b is a singular matrix. उसी तरीके से अपने को a minus b का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा. अगर से उसका डिटरमिनेंट 0 आया तो बोलेंगे अपन सिंगुलर है, और नहीं आया तो क्या बोलेंगे अपन, नॉन सिंगुलर है. तो वन बाय वन अपन करेंगे इसमें सॉल्व. सो लेट अस सी हियर नाउ व्हाट यू डन हियर. वेरी सिंपल क्वेश्चन आस्क्ड हियर. तो इन सबसे पहला काम निकालेंगे अपन a plus b का, दो मैट्रिक्स की एडिशन. a plus b में क्या है, i 2i minus 3 2, i मैट्रिक्स, सॉरी a मैट्रिक्स. b is nothing but 2i i 2 minus 3, दोनों का एडिशन देखो कितना आएगा. एडिशन इज नथिंग बट i plus 2i इज नथिंग बट 3i से, फिर 2i plus i मतलब कितना, अगेन 3i से, minus 3 plus 2 में से गया तो -1, और 2 plus -3 मतलब अगेन वी गॉट हियर -1. एडिशन तो सबको आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं. अब ये a plus b आया, इसका a plus b आने के बाद इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे. तो डिटरमिनेंट ऑफ a plus b इज नथिंग बट, इट इज इन टर्म्स ऑफ डिटरमिनेंट. ये आ गया 3i डिटरमिनेंट में, ये भी आएगा डिटरमिनेंट में. तो इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएंगे, सबको डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता. तो कितना, 3i into -1 वी गॉट हियर -3i. फार्मूले का माइनस and then -1 into 3i again -3i, so minus minus become +3i. तो -3i plus 3i की वैल्यू कितनी आ गई, 0. तो जब हम डिटरमिनेंट ऑफ a plus b निकालेंगे तो वैल्यू कितनी है, 0. so therefore a plus b is a मैट्रिक्स, is a singular matrix is there. therefore a plus b is a singular matrix. तो आपने को शो दैट करने का था. दो क्वेश्चन पूछा, पहले a plus b और a minus b निकालो और शो दैट करो कि a plus b सिंगुलर मैट्रिक्स है. डिटरमिनेंट निकाले हमने, डिटरमिनेंट कितना है उसका, 0. तो ये मैट्रिक्स कौन सी होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स. ओके, नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन. अगला क्वेश्चन पूछने वाला है whether a minus b is a singular matrix or not. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे उसका a minus b, फिर देखेंगे वो सिंगुलर है क्या नहीं. तो a minus b के लिए देखो यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट हो गया.
सबसे पहले a प्लस बी निकाले और उसके डिटरमिनेंट ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, a माइनस बी निकालेंगे और देखेंगे वो सिंगुलर है कि नहीं, एक इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम a माइनस बी निकालेंगे यहाँ पे, तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, है ना, उतना ही काम बच जाएगा। देखो i माइनस 2i, i में से 2 आ गया तो कितना बचा माइनस का i, 2i minus I, we got only I is there. अगला -3 minus 2, we got here -5 is there. And then 2 minus of minus 2 plus 3 हो गया, वो कितना मिला प्लस का 5। राइट है, सब्ट्रैक्शन तो सबको आएगा, I में से 2 आ गया तो माइनस का I, 2i में से 1 आ गया तो सिर्फ 1i, -3 minus 2 मतलब -5 और 2 minus of minus plus 3 मतलब कितना प्लस का 5। तो हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट समथिंग लाइक टू बी a minus b, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, देखो यहाँ पर एकदम सिंपल, तो इसका डिटरमिनेंट आएगा -i minus 5 and 5 है, कितना आएगा बोलो -5i, ठीक है, फॉर्मूले का माइनस and again here is a minus minus become plus 5i, so again we got it is equal to 0, so therefore we can say that a minus b is also a singular matrix is there. It is your answer, very simple one. I समझ में एकदम सिंपल था। ये क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स देके उससे पूछा था कि फाइंड a plus b और a minus b, दो मैट्रिक्स निकालो, और उसके बाद a plus b सिंगुलर मैट्रिक्स है ऐसा शो दैट करने का था, वो मैंने बता दिया। उसके बाद whether a minus b is a singular matrix और जस्टिफाई योर आंसर, तो अपने वन बाय वन करें, अपने डायरेक्ट करें, पहले a plus b निकाले और उसका डिटरमिनेंट निकाले, सिंगुलर बता दिए, फिर a minus b और उसका डिटरमिनेंट चेक करें तो कितना आया 0, इसलिए ये भी क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स इज देयर। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट इज योर क्वेश्चन नंबर 8 is there. So now we proceed to the question number 9 is there. आज एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, नई नया कांसेप्ट अगर से टाइम रहेगा तो शुरू करेंगे, तो फिर हम नेक्स्ट सेक्शन में कंटिन्यू करेंगे। So we call it 9th question, very simple one. So we proceed to the question number 9 is there. देखो अभी पहले क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, तो proceed to the question number 9. So what is the question number 9 here now? Question 9 में पूछा find x and y. Find small x and small y, if two matrices are given to us, 2x plus y minus 1 1 3 4y 4, then afterward plus second matrix something like to be a plus -1 6 4, then 3 0 3, this one, that is equal to 3 5 5, then 6 18 7 is there. It is the matrix. Now here we are interested to find out the values of x and y and is given to this one. Very simple. तो क्वेश्चन नंबर 9 में सबको मालूम है क्या करेंगे, सबसे पहले ये दो मैट्रिक्स का अपन सम करेंगे, इट इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो अपन ने ये कंसेप्ट देखे वाला है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में, राइट है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स ये अपन ने बीट देखे वाला है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल रहेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ABCD ये मैट्रिक्स है, ABCD नॉट इज इक्वल टू दिस वन -1 2 4 -3, तो अब अगर से ये दो मैट्रिक्स इक्वल है एक दूसरे के, तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या रहेगा, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या रहेंगे इक्वल, तो अपन कंपेयर करके बोलेंगे यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है -1, तो ये a11 ये इसका a11, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल मतलब a is equal to -1, b is equal to 2, c is equal to 4 and d is equal to -3. It is a property of equality of matrices. तो ये क्वेश्चन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे बेस है, पहले ये दोनों की एडिशन लो और इसके इक्वल टू एक मैट्रिक्स आएगा, फिर दोनों को इक्वेट करके वैल्यूज ऑफ x y अपन निकाल सकते हैं। तो व्हाट हैपेंस हियर टू दैट केस, वेरी सिंपल वन। तो यहां से स्टार्ट करेंगे अपन, यहां से
वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर वी हैव ये दिया वाला है आपके पास। तो इसके एडिशन कैसे आएंगे देखो 2x plus y minus 1 second condition minus 1 plus 6 then 1 plus 4 is there second condition में 3 plus 3 अपन 9 6 ले सकते हैं मगर थोड़ा सिस्टमेटिक कर रहे हैं अपन यहाँ पे 4y plus 0 and then 4 plus 3 it is equal to the matrix given of this type here. This matrix has been 3 5 5 6 18 7 is there. So very simple this one. Just addition लो addition कितना आएगा बोलो इसका addition something like to be here 2x plus y minus 1 6 में से 1 गया 5 4 और 1 5 3 और 3 6 4y plus 0 only 4y 4 plus 3 7 is equal to 3 5 5 6 18 7 is there. Now these two matrices are equal. ये दो मैट्रिक्स क्या है इक्वल है तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स उनके एलिमेंट्स भी क्या रहेंगे इक्वल राइट है तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस जब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो क्या लिखेंगे इसमें देखो सबसे पहले देखो ना यहाँ पे एलिमेंट्स इक्वल है कि नहीं ये दो एलिमेंट को छोड़ दो पहले यहाँ पे देखो इसका a12 5 इसका a12 5 इक्वल है इसका a13 5 इसका a13 इक्वल है इसका a21 6 इसका a21 6 इसका a23 7 इसका a23 7 मतलब अगर से अपने को y की वैल्यू निकालने का है एक तो अपन ये इक्वेशन इज इक्वल टू 3 करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं या सिंपली 4y इज इक्वल टू 18 करो तब भी अपने को क्या मिलेंगे y की वैल्यू मिलेगी दोनों में से एक तो अपन पहला एलिमेंट लेंगे देयरफॉर वी गॉट हियर समथिंग लाइक टू बी अब इसको क्या मिल सकता है 4y इज इक्वल टू 18 तो y इज इक्वल टू कितना 18/4 देखो ये दोनों करके कैसे करें अपन इक्वेट ये दो मैट्रिक्स को कैसे करते हैं अपन these two matrix 4y is equal to 18 so we got here y is equal to something like to be 18/4 18/4 means 9/2 वैल्यू ऐसे आएगी इसकी तो देखो इसमें ऐसे आता है पहली क्वेश्चन को अगर अपन करेंगे तो ये क्या हो गया 2x plus y minus 1 is equal to 3 इसका फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू इसका फर्स्ट इसको सॉल्व करो तो आपने को क्या निकालने का इसमें वैल्यूज ऑफ व्हाट वी टू फाइंड आउट हियर वैल्यूज ऑफ x एंड y इज देयर ठीक है y की तो वैल्यू मिल गई अपने को ये दोनों से कंपेयर करके 4y is equal to 18 से y कितना मिला 9/2 ये वैल्यू ये इक्वेशन में रख दो अपने को किसकी वैल्यू मिलेगी x की वैल्यू मिलेगी नहीं आया देखो सबसे पहले 1 बाय 1 जाएगा तो ये साइड में रहने दो ये मिल गया 2x प्लस इसको इक्वेशन नंबर 1 अच्छा सिस्टमेटिक करेंगे इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 ये तो इक्वल है ऑलरेडी ये भी ऑलरेडी इक्वल है ये भी ऑलरेडी इक्वल है अब दाओ दूसरी इक्वेशन क्या मिलेगी अपने को 4y is equal to 18 इसको इक्वेशन नंबर कितना 2 तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे अपन तो देखो सबसे पहले अपन 2 को सॉल्व करेंगे तो फ्रॉम 2 अपने को किसकी वैल्यू मिलेगी y की और वो वैल्यू अपन क्या रखेंगे x में व्हाट इज ऑफ फ्रॉम 2 वी गॉट द वैल्यू ऑफ y what is the value of y 4y is equal to 18 4y is equal to 18 implies y is equal to 18/4 18/4 means something like to be 9/2 so what is the value of y therefore y is equal to 9/2 is there. Okay. Now put the value of y in equation number 1. You got the value of x is there. Put the value of y. Put y. Or value of y. Put the value of y in equation number 1. So what happens now? 1 में रखने के बाद देखो क्या मिलेगा? अगर ये वैल्यू हम 1 में रख देंगे तो क्या मिलेगा? 2x plus y की जगह पे y की वैल्यू 9/2 -1 is equal to 3 सॉल्व दें ये कितना मिला तुमको यहाँ सब उधर लेके चले जाओ 3 +1 -9/2 एकदम छोटे बच्चों कैसे बता रहे इसमें एकदम कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते एकदम सिंपल तरीके से बता जिसको नहीं आता कुछ उसकी माइनस का 1 उधर पे जाने के बाद प्लस का 1 प्लस का 9/2 उधर जाने के बाद माइनस का 9/2 so you got here something like to be 3 + 4 4 9/2 इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर से करेंगे अपन तो क्या मिलेगा इसका यस ये नो और डेटा उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबका सॉल्व करने के लिए बोलो इसको पूरा सॉल्व कर देंगे अपन
टेल मी 2x इज इक्वल टू कितना मिल गया 8 8 माइनस 9 माइनस 1 है ना लिखते हैं इसको अपन 8 माइनस 9 डिवाइड बाय 2 so 2x is equal to minus 1 by 2 is there so x is equal to what is the value of x ये 2 इसके मल्टीप्लिकेशन में कहां पे जाएगा उसके डिवीजन में so x is equal to minus 1 by 4 is there is the answer so we got the value of x is something like to be minus 1 by 4 and value of y is nothing but 9 by 2 is the question. This type of question is based on the type of equality of matrices. Equality of matrices पे base पे ये question था. So very simple question asked here. Now we proceed to the next question. Question number 10 is there. चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे 10वें क्वेश्चन की तरफ. I hope ये समझ में आ गया होगा. अपन 10वें की तरफ जाएंगे. ठीक है. So we proceed to the question number 10 is there. So okay, question number 10 is something like to be if there is a matrix 2a plus b 3a minus b c plus 2d and 2c minus d ऐसा is equal to 2 3 4 minus 1 2 3 4 minus 1 is there ऐसा मैट्रिक्स है तो ये दोनों इक्वल है तो फाइंड a b c and d फाइंड a b c and d is there तो वही कांसेप्ट है सेम कांसेप्ट मतलब कौन सा कांसेप्ट इट इज अ मैट्रिक्स इट इज वन मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू अनदर मैट्रिक्स ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स आपको कितने इक्वेशन मिलेंगे चार इक्वेशन में से कोई दो इक्वेशन को सॉल्व करो ये दो इक्वेशन को सॉल्व करने से ab की वैल्यू मिलेगी और ये दो इक्वेशन को सॉल्व करने से और आपने को cd की वैल्यू मिलेगी ओके सो व्हाट हैपेंस नाउ ओके आवाज नहीं आ रही क्या तो फिर ना तो क्वेश्चन में ऐसा है ये दो मैट्रिसेस इक्वल है और वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a b c and d तो ये दोनों को इक्वेट करो इक्वेट करने से कितने इक्वेशन आएंगे 4 इक्वेशंस आ रहे हैं दिस इज इक्वल टू this one that equal to this one that equal to this one चार इक्वेशंस आएंगे चार में से कोई दो इक्वेशन को सॉल्व करो तो ab की वैल्यू मिलेगी और बाद में दो इक्वेशन को सॉल्व करो cd की वैल्यू मिलेगी कैसा बोलगा देखो यहां पे क्लियर ना तो हम इसको यहां से स्टार्ट करेंगे दिस वन और अगर समझाने को कोई बात नहीं यहां से स्टार्ट करेंगे we have 2a plus b 3a minus b c plus 2d 2c minus d is equal to 2 3 4 minus 1 is there ठीक है अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम ऐसा बोल सकते हैं क्या बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस दो मैट्रिक्सेस इक्वल है तो क्या बोलेंगे हम इसको बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऐसे मिलेगी इसमें इसका फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू 2a plus b कॉल इक्वेशन नंबर 1 इसका सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू दिस वन 3a minus b is equal to 3 ये दूसरी इक्वेशन तीसरी इक्वेशन c plus 2d is equal to 4 equation number 3 and last one is a 2c minus d is equal to -1 equation number 4 is there तो टोटल चार इक्वेशन मिलेंगे अपने को अब चार इक्वेशन में से we are interested to find out the values of a b c and d is there very simple one so first we solve first two equations and got the values of a and b then we got you have to solve the equation 3 and 4 and got the values of c and d very simple one तो जैसा अपन 10th में करते उस प्रकार से करेंगे तो what happens now इसको सॉल्व करने के बाद एक और दो को सॉल्व करेंगे पहले तो ये कैंसिल b और b ये कितना मिला 5a is equal to 5 so a is equal to 1 is there now put the value of a in equation number 1 put अरे छोड़ो ना 1 becomes टाइम पास क्यों करने का सब मालूम है अपने को 1 कैसा हो जाएगा अगर से इसमें रखें तो 2 plus b is equal to 2 so b is equal to 0 is there ये दो वैल्यू मिले a is equal to 1 and b is equal to 0 is there now if you solve this question equation number 3 and equation number 4 you got the values of
C and D is there, है ना? आप तुम दोनों सॉल्व कर सकते हैं, there is no need to solve that one. अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपने किसकी वैल्यू मिलेंगी, C और D की. कैसे सॉल्व करेंगे सबको मालूम है. मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 by 2, तो 2D गेट्स कैंसिल. 4C में से 1C, मतलब इसमें से ये कितना मिला, 5C is equal to 3. तो C is equal to what happens now, इसको सॉल्व करेंगे क्या, 2 by 5 कुछ मिलेगा इसका. ठीक है, फिर भी इसको सॉल्व करेंगे अपन. चलो अपने पास टाइम है फिलहाल, तो पहले दो को सॉल्व करके AB की वैल्यू मिलेगी. आप 3 और 4 को सॉल्व करके अपन CD की वैल्यू निकालेंगे. तो ये निकालेंगे, देखो अपन फ्रॉम 3 and 4, from 3 and 4, what are the values here, C now. From 3 and 4, equation number 3 is something like to be C plus 2D is equal to 4, and equation number 4 multiply 4 by 2, 4C minus 2D is equal to minus 2 is there after multiplying by 2. So we got here value something like to be this plus 2D minus 2D gets cancelled. We got here 5C, 4 minus 2 is nothing but 2 is there, so C is equal to 2 by 5 is there. So it is the value of C. Now अब इसके बाद तो निकाल सकते कम से कम. Put the value of C in equation number 3 और 4, 3 और 4 में से कोई एक में रखो. इसकी वैल्यू मिलेगी अपने को, D की वैल्यू मिलेगी, जो कि अपन आराम से निकाल सकते हैं. Okay, this is the question. Now we proceed to the last question of that exercise. This is nothing but question number 11 is there. जो कि थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, उसको आराम से सॉल्व करेंगे. अभी देखो, अभी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट वन. क्वेश्चन नंबर 11 is there. We started now. So here now question number 11. Okay, यहाँ तक कोई तकलीफ, एकदम सिंपल है, कोई बात नहीं यहाँ तक. इसके बाद सिर्फ एक एक्सरसाइज रहती है और ये चैप्टर खत्म. Very simple and very interesting chapter is finishes now. Now we have to make one group for that one. जो interested candidate है सिर्फ उनका ही ग्रुप बनाएंगे अपन. बस कल खत्म. 1 minute. Question number 11 read करो. Read question number 11. So now we proceed to the next question. Question number 11 is there. So what is question number 11 tells us here? There are two bookshops owned by Suresh and Ganesh bookshops. है ना? थोड़ा नंबर दे क्वेश्चन. There are two bookshops owned by Suresh and Ganesh bookshops. Their sales in rupees for book in 3 subjects, physics, chemistry and mathematics for 2 months, July and August, are given by 2 matrices A and B. July sales in rupees. July का matrix दिया वाला है. Capital A is equal to, it is matrix something like to be here. 5,600, matrix बड़ा है. 5,600, 6,000, 750. Then here 8550, 8,500. फिर कितना 6650 और इसके बाद 7055 and then 8905. तो ये कौन सा मंथ की, जुलाई मंथ की है. ठीक है, ये जुलाई सेल्स इन रुपीज है. इसके बाद ये दो बुक स्टॉल है, एक सुरेश की बुक दुकान है और एक किसके बुक का जो है गणेश, सुरेश और गणेश बुक स्टॉल के. उनके पास कौन कौन से बुक्स बिके इसमें से, फिजिक्स और ये केमिस्ट्री का सेल है और ये मैथमेटिक्स का सेल है, दिस वन. ठीक है, तो ये क्या है,
जुलाई में सेल होने वाली दोनों के बुक स्टॉल पे जुलाई का सेल्स बताया, मतलब जुलाई महीने में सेल होने वाले दो बुक स्टॉल है, सुरेश और गणेश नाम के दो, उनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ऐसे तीन बुक्स है। तो ये जुलाई महीने में इनके पास इतने बिके, जैसा सुरेश के पास जुलाई महीने में फिजिक्स में इतना 5600 रुपीज मिले इसको, केमिस्ट्री में इतना मिला, मैथमेटिक्स में इतने रुपीज मिले। उसी प्रकार से गणेश बुक स्टॉल को फिजिक्स के बुक्स पे इतना रुपए मिले, केमिस्ट्री के बुक्स पे इतने रुपए मिले और मैथ्स के बुक्स पे उसको इतने रुपए मिले, ये दोनों का। उसके बाद अब उससे दिया अगस्त सेल में दिया, जुलाई में बिकने वाला और अगस्त में बताया 2017 का दिया उसने अगस्त सेल्स। तो अगस्त सेल्स में क्या उसको दूसरी मैट्रिक्स नाम दिया उसने, मैट्रिक्स भी अभी क्वेश्चन चालू है, आंसर शुरू नहीं हुआ, क्वेश्चन समझ के लो तो आंसर एकदम सिंपल है, आंसर सिर्फ 2 से 3 लाइन का है, सिर्फ थ्योरी बहुत बड़ा बना दिया उसने, एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर सिर्फ 2 से 3 लाइन का है। तो देखो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन समझ के लो, पी मैट्रिक्स दिया गया अपने को अगस्त सेल रुपीस में, वही सेम कांसेप्ट, फिजिक्स में कितने मिले इसको, केमिस्ट्री में कितने और मैथ्स में कितने, कितने बुक स्टॉल आपके पास, 2 बुक स्टॉल है, एक किसकी है सुरेश की है और एक किसकी है गणेश की है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो सुरेश को अगस्त महीने में फिजिक्स में कितने मिले 6650 7055 और मैथमेटिक्स में कितने मिले इसको 8905, कितने रुपीस मिले सुरेश के बुक स्टॉल को। उसके बाद गणेश के बुक स्टॉल को 7000 in physics, then 7500 in chemistry and 10200 in mathematics is there. So this is the information given to us, and on the basis of that information there are 2 questions asked in that question. तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ के लो, उसने क्या बताया, 2 मैट्रिक्स उसने दिया, एक मैट्रिक्स ए में क्या बताया उसने, जुलाई में सेल होने वाला मंथ इन द मंथ ऑफ जुलाई 2 बुक स्टॉल है सुरेश और गणेश बोल के, इनके पास 3 टाइप के बुक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। तो सुरेश के जुलाई मंथ में फिजिक्स में इतना फायदा 5600 रुपए मिले, केमिस्ट्री में इतने मिले, मैथ्स में इतने, गणेश को इतना। उसी तरीके से अगस्त महीने में भी दिया उसने, अगस्त के महीने में सुरेश का मिले वाला प्रॉफिट, गणेश का मिले वाला प्रॉफिट, ये 2 मैट्रिक्स में उसने अलग अलग दिया, मतलब ये मैट्रिक्स हो गई तुम्हारी जुलाई की मैट्रिक्स कैपिटल ए और अगस्त की मैट्रिक्स मतलब कैपिटल बी इज देयर, तो अलग अलग मैट्रिक्स जुलाई और अगस्त के दिया। अब उसको पहला क्वेश्चन क्या पूछा वो देखो उसमें, सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड हियर, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड हियर, इट इज आस्क्ड हियर find the increase in sale in rupees from July to August 2017। देखो क्वेश्चन लिखता है यहाँ पे, पहले क्वेश्चन लिखता हूं, find the increase in sales in rupees from July to August 2017, July to August 2017। अब उसने क्या बोला कि इसमें टोटल इंक्रीज निकालो, कितना इंक्रीमेंट हुआ जुलाई से अगस्त के बीच में, मतलब कितना फायदा हुआ उनको जुलाई से अगस्त में। तो इंक्रीज निकालने का है तो अपन क्या करेंगे, अगस्त में से जुलाई की मैट्रिक्स क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली अपने को क्या मिलेगा, कितना रुपए से इंक्रीज हुआ उनका सेल, वो अपन निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर कैसा, सिंपली अपने को अगर से जुलाई से अगस्त में उसका इंक्रीज निकालने का है तो अगस्त में से जुलाई की मैट्रिक्स माइनस, तो अगस्त की मैट्रिक्स मतलब बी और जुलाई की मतलब ए, तो बी माइनस ए। मैंने बोला पहले ही बोला था यहाँ पे कि सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन बड़ा है, उसका आंसर बहुत सिंपल है, तो बी माइनस ए कर दो, तो बी मैट्रिक्स क्या आपके पास 6650 7055 8905 7000 this one 10200 में से माइनस करेंगे अपन ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स कैसे आएंगे यहाँ पे, व्हाट इज योर ए मैट्रिक्स 5600, then afterward 8500 8500 6650 7055 8905 से। तो अब इसका सब्सट्रैक्शन करने का है, सब्सट्रैक्शन तो सबको आएगा इसमें, है ना, तो इसमें से सब्सट्रैक्शन करने के बाद तुमको क्या मिलेगा, इंक्रीज इन सेल फ्रॉम जुलाई टू अगस्त, जुलाई से अगस्त में इंक्रीज मिलेगा, कितना सेल का इंक्रीज हुआ जुलाई से लेके अगस्त तक में। तो इसका सब्सट्रैक्शन करो, 6650 में से 5600 गया तो कितना बचा यहाँ पे, इट इज नथिंग बट 1050 इज देयर, राइट, 1050 है ना, 5600 ये 6600 मतलब कितना 1050 का,
7,055 में से 6,750 माइनस करने पे ये कितना मिलेगा? ये 7 ये 3 मतलब 350 आई थिंक सो। 7055 में से 7055 में से 30 नहीं उल्टा हो गया है ना, कितना मिलेगा? 70 में से मतलब 305 305 है सब्सट्रैक्शन सबके बाद, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। उसके बाद 8905 में से माइनस करेंगे अपन 8500, तो ये कितना मिला? 25 और 4 49 और ये 5 405। ओके 7000 में तीन उल्टा उल्टा ऊपर ही साबित 350 में से ये मिला तो 7000 मिलते 350। देन आफ्टरवर्ड नेक्स्ट वन इज ये कितना मिलेगा? इसमें से 7500 में से 7055 गए तो ये हो गया 4445 445 है ना। ये 7500 है, ये 7055 है, इधर से इसमें से 445 में तो ये मिलता। और ये लास्ट में कितना मिलेगा? देखो 10,200 में से 8,905 माइनस करने पे कितना मिलेगा? ये 8,905 मतलब ये ऊपर होगा 1100 और एक 1200 और ये कितना है? 05 मतलब 1295 12952। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन आस्क है। सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन में थ्योरी बहुत बड़ी है मगर उसके आंसर बहुत छोटे हैं। तो सबसे पहले समझना है, पहले क्वेश्चन का आंसर कितना सिंपल था कि यहाँ पर दो मैट्रिक्स दी वाली है, एक दी वाली है मैट्रिक्स जुलाई की दी वाली है और एक मैट्रिक्स अगस्त की दी हुई है। ठीक है, तो जुलाई का